मिल जाए देखो ये तो सुन लो Good morning, students. गुड मॉर्निंग मैम। बेटा कल जो हमने आयोडीन वैल्यू सैपोनिफिकेशन वैल्यू लिया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और आज जो है तो अपना टॉपिक एंड हो जाएगा। अब कुछ बचा होगा तो मैं चेक कर लेती हूँ और आज आपको ये लिपिड्स के नोट्स जो है तो सेंड कर देती हूँ। ओके,
तो सबसे पहले जो है हमने देखा था आयोडीन वैल्यू. ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय आयोडीन वैल्यू? तो आयोडीन वैल्यू, इट इज द measure of relative degree of unsaturation in the oil components, and it is determined by the uptake of halogen. उसके बाद में melting point and oxidative stability, they are related with this degree of unsaturation. तो iodine value, it will provide estimation of the quality factor. जो भी quality factor है उसका estimation जो है, तो by this iodine value we will get greater the value of this iodine, the more unsaturation and higher the susceptibility of oxidation will be there. So we had taken some example ki peanut oil, it has 82 to 107, its iodine value is 82 to 107, and in corn it is 103 to 128. In cottonseed it is 99 to 113. Then in linseed, जवस का जो तेल होता है, तो in that this iodine value is more, that is 155 to 205. And in coconut oil it is less, that is the 7.7 to 10.5. In palm olive oil again it will be 44 to 54. In butter it is 25 to 42. So this is about the iodine value which we had seen yesterday. Now we have to see the next one, that is the saponification value. Okay, so what do you mean by saponification value? So saponification value or saponification number, both are the same terms, and they are referred for the amount of base which is required for the saponification of fat sample. अगर कोई सैंपल हमको दिया गया है तो उसमें जितना हम बेस ऐड करेंगे ताकि हमको सैपोनिफिकेशन प्रोसेस जो है तो वो सेटिस्फाई हो, दैट इज कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन वैल्यू. सैपोनिफिकेशन वैल्यू जो है तो जनरली हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लेते हैं, and it is defined as the value which will represent number of milligram required to saponify 1 gram of fat under specific condition. तो in case अगर हम instead of potassium hydroxide if we are using sodium hydroxide, so then we have to convert that saponification value from potassium to sodium by dividing the potassium hydroxide value by the ratio of molecular weight of potassium hydroxide to the sodium hydroxide, and that saponification value, that the ratio of molecular weight of potassium hydroxide and the sodium hydroxide is 1.403. Okay, so up to this we had seen yesterday. Now 3 topics are remain only, and that is the acid value, then Raychard-Messel value number, and the rancidity. So acid value, it is the parameter in the specification of fats and oil. जब हम specification करते हैं fats और oil का, तो उसके लिए हमको ये acid value की जरूरत पड़ती है. तो एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है एसिड वैल्यू की वो क्या रहेगी? तो इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन मिलीग्राम नीडेड टू न्यूट्रलाइज द ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट इन 1 gram of fat, and it is measure of the free fatty acids which are present in the fats or the oil. तो अगर हमको एसिड वैल्यू निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? इट इज द वेट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि हम मिलीग्राम में लेंगे
and which is needed, the organic acid which is present in the fats and oil. फैट्स और ऑयल में फैटी एसिड्स है ना, मीन्स ऑर्गेनिक एसिड है, तो वो ऑर्गेनिक एसिड जो प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको जितना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगेगा, तो दैट इज द वैल्यू, एसिड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर जो है तो अगर अमाउंट जो है फैटी फ्री फैटी एसिड का अमाउंट जो है सैंपल में, चाहे वो ऑयल का सैंपल हो चाहे फैट का हो, तो वो जो है हाइड्रोलाइसिस होकर ट्राइग्लिसराइड्स जो है तो वो शो करेगा। अब ये ट्राइग्लिसराइड्स हमको मिलेगा हाइड्रोलिसिस होने के बाद में। तो ये ऐसी रिएक्शन जो होती है जिसमें लाइपेज नाम का जो एंजाइम होता है उसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, और ये जो है तो इंडिकेटर रहेगा कि पर्टिकुलर जो टेम्परेचर है। हेलो बेटा, म्यूट करो आपका माइक। आपका माइक म्यूट करो बेटा। मयूरी माइक ऑफ कर। यहाँ पर जो है तो जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो हाइड्रोलाइसिस होते वक्त कुछ जैसे कंडीशंस रहेगी। तो पहली कंडीशन ये होता है कि हियर लाइपेज नाम का एंजाइम जो है तो वो रिक्वायर्ड होता है, और कुछ जो है तो इनएडिक्वेट इंडिकेटर्स जो है तो ये प्रोसेस के लिए या फिर स्टोरेज कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी हो गया या टिश्यू डैमेजिंग है, ऐसे कुछ स्टोरेज कंडीशंस भी जो है तो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जो सोर्स है एंजाइम का तो वो टिश्यू भी हो सकता है जिसमें से ऑयल या फैट जो है तो एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो है तो जब ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऑयल या फैट जो है तो उसमें कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेफिनेटली हम लोगों को जो है तो एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो होता है ट्राइग्लिसराइड का, तो उसके बाद में जो है ग्लिसरॉल मिलेगा, और उससे जो है तो हम लोगों को जो भी जैसे ग्लिसरॉल के जो भी यूजेस है फिर वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व करेगा। तो दिस इज अबाउट एसिड वैल्यू। अगेन आई एम रिपीटिंग। तो एसिड वैल्यू इट इज द पैरामीटर in the specification of fats and oil. It is defined as the weight of potassium hydroxide in milligram, which is needed to neutralize organic acid present in 1 gram of fat, and it is measured by the free fatty acids which are present either in the fat or in the oil. ठीक है, and increment in the amount of this free fatty acid in the sample of oil or sample of fat, it indicates hydrolysis of triglycerides. So such reaction which occur by action of lipase enzyme, and it is an indicator of inadequate processes and storage conditions. For example, high temperature or humidity or tissue damage. So the source of enzyme can be tissue from which this oil or the fat was extracted, or it can be contaminant from other cells, including some microorganism. So beside this free fatty acid, hydrolysis of triglyceride produces glycerol also. So this is about acid value. Do you understood, beta?
Yes, ma'am. Okay. Now the next topic is Richard Massel number, which is called as RM number. Richard Massel number और RM number ये क्या होता है? तो नंबर ऑफ मिलीलीटर मीन्स 0.1 जो N पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है which is required to completely neutralize soluble volatile fatty acid distilled from 5 gram fat is called as RM number. रिचर्ड मैसेल नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मिलीलीटर जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है तो 0.1 N पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भी सोल्यूबल वोलाटाइल फैटी एसिड्स फैट्स में 5 ग्राम फैट में प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लगेगा, उसी को हम RM नंबर कहते हैं. तो this RM number it is useful in testing purity of butter. जो बटर है तो वो कंटेमिनेटेड तो नहीं है, इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इसको चेक करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए हम RM नंबर का यूज करते हैं बिकॉज दिस कंटेन अ गुड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वोलाटाइल फैटी एसिड. तो इसमें जो है कौन कौन से एसिड होते हैं, तो ब्यूटेरिक एसिड होता है, कैप्रोइक एसिड होता है, कैप्रिलिक एसिड होता है, जो कि हम टेस्ट करते हैं. तो अदर फैट्स और ऑयल्स जो है उसमें ये वोलाटाइल फैटी एसिड्स का अमाउंट जो है तो वो नेग्लिजिबल होता है. बटर में इसका अमाउंट ज्यादा होता है. तो बटर का जो RM नंबर होता है वो होता है 25 to 30. और ये जो है तो जो अपन एडिबल ऑयल जो लेते हैं तो उसमें ये लेस देन 1 होता है. तो दिस इज अबाउट Richard Massel number, that is RM number. So again I am telling you what do you mean by Richard Massel number. So it is defined as the number of milliliter 0.1 potassium hydroxide which required to completely neutralize soluble volatile fatty acid distilled from 5 gram fat. So this RM number is useful in testing purity of butter since it contains good concentration of the volatile fatty acids like butyric acid or the caproic acid or the caprylic acids. So this is in contrast to other fats and oils which have negligible amount of this volatile fatty acids. Butter's RM number is 25 to 30 and the other edible oil that contain RM number less than 1. So this is all about the values, different values of these lipids. Okay? The last topic is remain here, that is the rancidity. अब rancidity ये condition है. Actually in our surrounding so many oxidation processes are going on. अब ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है हमारे सराउंडिंग में, तो इसमें एक जो प्रोसेस होती है तो वो हमारे ऑयल में भी होती है और दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द rancidity. जैसे सपोज इफ वी हैव अ फंक्शन इन आवर हाउस, हमारे घर और फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, तो हम टीन लाते हैं ऑयल के. अब वो जो टीन लाते हैं जिसमें नियर अबाउट 15 kg जो है तो ऑयल होता है. जितना यूटिलाइज करना है उतना यूटिलाइज्ड हो जाएगा वो प्रोग्राम में, और बचा हुआ जो ऑयल है तो दैट विल रिमेन इन दैट टीन, वो टीन में ही रह जाएगा. अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन होगा, एरियल ऑक्सीडेशन होगा. एरियल ऑक्सीडेशन होने की वजह से the taste and the smell of that oil will get changed.
And if we are cooking food or frying anything in this oil, so definitely the taste will get changed. और we can see the frothy appearance. बहुत ज्यादा आप लोगों ने घर में भी देखा होगा कि जब बचा हुआ नीचे का बचा हुआ ऑयल होता है टीन का, तो उसमें फ्रोदी अपीयरेंस आ जाता है. तो वो जो फ्रोदी अपीयरेंस आ रहा है एंड उसका एक टिपिकल स्मेल आ रहा है. अदरवाइज हमारे जो ऑयल है एडिबल ऑयल उसमें स्मेल नहीं आता. तो ये सब जो है दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द रैंसिडिटी. तो रैंसिडिटी इट इज द कंडीशन which is produced by aerial oxidation of unsaturated fat which are present in the foods and the other products, and they are marked by unpleasant odor. बहुत ऐसी गंदी सी स्मेल आएगी. फ्लेवर will also get changed. So when fatty substance it is exposed to air, its unsaturated components they get converted into hydroperoxide, which will break down the volatile aldehydes, esters or alcohol, ketones, hydrocarbons which are present in that. And most of because of it what will happen, so odor will produce, the disagreeable odor will be produced. So here butter, oil, they get rancid because of hydrolysis process, and which will liberate volatile and malodorous acid जो है तो वो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है. और स्पेशली वो जो एसिड रहेगा तो दैट विल बी द ब्यूटेरिक एसिड. ब्यूटेरिक एसिड प्रोड्यूस होता है. ठीक है. और जो बीफ होता है तो बीफ में सैचुरेटेड फैट होता है, एंड दिस सैचुरेटेड फैट इट इज रेजिस्टेंट टू द ऑक्सीडेशन एंड it will become rancid in a rare condition at ordinary temperature. So this is all about the liquids. बेटा आपके सिलेबस में जितना भी था मैंने वो कवर अप कर दिया. अगर कुछ बचा होगा तो मैं देखूंगी. ठीक है. क्योंकि जो डिटेल स्टडी है तो वो बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है. जो भी मैकेनिज्म है कि किस तरह से कोई एक्शन हो रही है, जैसे सेलुलोज बोला तो सेलुलोज का कैसे एक्शन होती है, क्या वर्क करता है, ये सब जो है, या ग्लाइकोजन बोला या लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है तो ये कैसे होता है हमारे बॉडी में, हाउ वी विल गेट एनर्जी फ्रॉम दैट, ये सारी चीजें जो है तो बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है. यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्टरी दिया हुआ था एंड दैट आई हैड कंप्लीटेड. ओके. डू यू हैव एनी डिफिकल्टी? अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लो बेटा. मैम. हाँ बोलो. मैम अभी बस प्रैक्टिकल बचा है तो अभी तो हो नहीं सकता, बट आप हमें बस एक्सप्लेनेशन दे देना उसका, मतलब कैसे किया जाता है करके. तो वो आपको वीडियो यानी कॉलेज में जाकर वीडियो बनाकर जो है तो आपको सेंड किए जाएंगे. तो उसमें ओके तो मैम. आपको समझ नहीं आ जाएगा. ठीक है. ओके मैम. अभी और कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको इससे? मैम असाइनमेंट्स दे देना, मतलब कैसे अभी हो जाएगा फिर. हाँ. एक जो है तो 1 मिनट मैंने निकाल के रखा. आप लिख लो. You write down this assignment. आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कर सकते हो. ठीक है. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप लोगों को जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करना है. ठीक है.
क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो उसको एक प्रॉपर वे से आप लोग करोगे। देन सेकंड जो है इसमें से आपको करना है, तो दैट इज द classification of amino acid with structure. Classification of amino acid with structure. Okay, तो from first module में जो है तो आपको करना है classification of carbohydrates, and from in the second module आपको करना है बेटा classification of amino acid with structure. Do you understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So the only thing is remain means I had seen and I had tally each and everything. So from my point of view, I have finished up everything. Okay. But still, if anything remains, so I will see it again today and I will complete it. So only thing is remain, that is the practicals. So here preparation of basic solution for titration, that is remain. So preparation of standard solution of just now we had studied about that the sodium hydroxide and सल्फ्यूरिक एसिड जो है तो उनकी स्ट्रेंथ जो N जो है तो 0.1 N और 0.2, so we will prepare that. Then we have how we will calculate the normality, morality, gram per liter concentration, so that we have to see. Then oxidation and reduction titration is there. So ferrous ammonium sulfate with the potassium dichromate and potassium उसके बाद में जो है तो ऑक्सैलिक एसिड के साथ में भी जो है तो हम लोगों को पोटेशियम परमैंगनेट विद ऑक्सैलिक एसिड, तो ये एक प्रैक्टिकल आपका लेना है। और उसके बाद में जो है तो हाउ कैन वी विल qualitative analysis we can done of carbohydrate, glucose, fructose, sucrose, lactose, maltose, starch. Then calorimetric metric method जो है तो वो है बेनेडिक्ट reagent का यूज करके जो है तो सुक्रोज की टेस्ट है, color reactions or precipitation reaction which we had already seen in the theory, so that we have to do for fats as well as proteins. तो ये आपके केमिस्ट्री में दिया हुआ है, so that we will see. Okay. Yes, ma'am. Now if you want to ask anything, so you can ask me, or otherwise we will revise from tomorrow whatever we had studied, so that we will revise from tomorrow. We will start from the again from nucleic acid. We had firstly I had taken nucleic acid. Now the first topic was nucleic acid. After that I had taken enzymes, then carbohydrate, proteins, and these lipids. These are the topics which you have to study. So I had already told you that here the syllabus is less as compared to other subjects because we have to study it in the biochemistry in detail. तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स जो है तो उसको आप लोग स्टडी करना है. ओके, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर्स, तो चाहे वो न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर हो, चाहे एंजाइम्स का हो, ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर को भी अच्छे से आपने करके रखना है.
उसके बाद में जो है तो डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, जो भी एंजाइम्स है तो वो एंजाइम्स के नेम प्रॉपरली, देन अमाइनो एसिड्स जो है तो अमाइनो एसिड्स यू शुड नो 20 अमाइनो एसिड्स, तो वो 20 अमाइनो एसिड्स के नेम, then the reactions which are given in your syllabus, so that you have to do. Okay, you have to prepare for it. Then means what do you mean by tertiary structure of protein, what do you mean by denaturation, what are the agents of denaturation, ये सारी चीजें जो है तो आपको पता होनी चाहिए. What is the classification of protein? अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन अलग होता है और प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन अलग. वैसे ही जो है तो जो लिपिड्स है, हाँ, उसका क्लासिफिकेशन अलग है, और जो फैटी एसिड्स है उसका क्लासिफिकेशन अलग है. तो ये सब अपने को पता होना चाहिए. कई बार हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डी आइसोमर? अब यहाँ पर जो है तो आइसोमर, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर, ये आपको पता होना चाहिए. एनोमर क्या होता है, म्यूटा रोटेशन क्या होता है, एनालाइजेशन क्या है. तो ये सारी चीजें जो है हम जब स्टडी करेंगे प्रॉपर वे से तभी हमको समझ में आएगी. तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं. ठीक है, और अभी जैसे ये सारे टॉपिक्स आपके हो जाते हैं, प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा इजी जाता है क्योंकि हमको अगर बेसिक नॉलेज इसका पता है तो डेफिनेटली इट विल बी इजियर. देन एंजाइम्स जो है तो एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स का जो फंक्शंस है, नोमेनक्लेचर है, उसकी जो एक्शंस होती हैं, तो ये सब करके रखना. कोएंजाइम्स है, कोएंजाइम का क्लासिफिकेशन है, कुछ एग्जांपल्स जो है, फुल फॉर्म जो है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए. जैसा एफएमएन है तो एफएमएन का फुल फॉर्म क्या है, एनएडीपी है तो एनएडीपी का फुल फॉर्म क्या है, एनएडी है तो एनएडी का फुल फॉर्म क्या है. ये सारे फुल फॉर्म्स जो है तो अच्छे से करके रखना. ओके, डू यू अंडरस्टूड बेटा? यस मैम. अब आपको कुछ पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज आज जो है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ. एंड आई विल सी, अगर कुछ बचा होगा तो देख लेती हूँ, और नहीं तो अपन रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो रिवाइज के लिए मैं टॉपिक आपको सेंड कर दूंगी, तो आप थोड़ा सा पढ़ के रखना उसको, ताकि जो भी अब हम पढ़े तो वो अच्छे से हम लोगों को जो है माइंड में फिक्स हो जाए और हमारा स्टडी जो है तो प्रॉपर्ली हो जाए. ओके मैम. ठीक है, तो डू यू हैव एनी डाउट? यू आस्क मी जस्ट नाउ. मैम आप अभी कोई टेस्ट लोगे? एक्चुअली बेटा मेरे इसमें क्या हो रहा है कि स्टोरेज नहीं है, तो मैं अगर टेस्ट लेती हूँ, आप सेंड करोगे, मेरे इसमें एक्सेप्टेंस ही नहीं हो रही, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग टेस्ट. मैं देखती हूँ गूगल फॉर्म पे लेती हूँ आपकी टेस्ट, है ना. If I will take it in a Google form, so definitely it will be beneficial for your final examination, as you are having online MCQ examination. That's why I will take it on Google form. Okay. तो मैम आप एमसीक्यू टाइप लेंगे या फिर सब्जेक्टिव? तो गूगल फॉर्म में तो एमसीक्यू टाइप की होगी, क्योंकि आप अगर ऐसे देते हो तो वो पीडीएफ बनेगी ना, और वो पीडीएफ ही तो एक्सेप्ट नहीं हो रही मेरे इसमें. स्टोरेज कंप्लीट हो गया है ना, इस वजह से. कैसे बहुत सारे पेपर्स कॉलेज के, स्कूल्स के, और ये सब हुआ ना, इस वजह से प्रॉब्लम. ठीक है,
तो मैं मैम जो आपने असाइनमेंट दिए हैं वो दोनों पीपीटी है ना? हाँ पीपीटी बना लो बेटा इसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये दोनों पीपीटी बना दो। ओके ओके हाँ, और फिलहाल सेंड मत करना, मैं बताती हूँ आप लोगों को कब सेंड करना है, क्योंकि वही आप सेंड करोगे ना तो पीपीटी ओपन नहीं हो पाएगा मेरे इसमें। ओके, तो टुडे I want to stop here. I will continue with the tomorrow. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you, ma'am.